तो नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है राहुल गांधी। शुरुआत करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट राहुल गांधी, अगर मैं राहुल गांधी सिर्फ टाइप करता हूँ, इट कम्स अप एज ऑफ कोर्स मेंबर ऑफ लोकसभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, माता पिता का नाम सोनिया गांधी, राजीव गांधी, तो बेसिक है। बट उनका एजुकेशन के बारे में जब बात की जाती है तो मोस्ट ऑफ हिज टाइम वाज होम स्कूलिंग, बिकॉज उस टाइम पे दिल्ली में राइट्स चल रहे थे इंदिरा गांधी का असैसिनेशन उसके बाद, तो दैट्स द रीजन प्रियंका एंड राहुल गांधी वर होम स्कूल्ड। And उसके बाद then they went up to complete their education in Doon School, and then there were 3-4 schools involved. There was an university, Trinity College, जहाँ पे उन्होंने अपना MPhil किया. So he's a master's graduate, postgraduate, practically person who is leading the Indian National Congress. So education wise, तो यार he started working for a consultancy firm. Which was in Harvard Business School for 3 years in London, and he then came to Mumbai and he started his company called Backops Services Private Limited. और फिर उसने उसका एक वर्जन Backops UK भी निकाला, जहाँ पे उन्होंने उधर के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और सिक्योर किए. So that was his thing. He was like techie. He was like मैं हूँ मस्त एकदम, मैं अभी मेरा कंपनी बनाएगा. So right now we are talking about 2002 and his birth date is practically 1970, 18, 19, 2000, 32 years, 32 साल की उम्र तक राहुल गांधी had no strings in politics. He was like कि यार मैं अभी तो young हूँ, I'm going to do everything what I want to do, back ops, I want to do IT, मैं कंपनी बनाऊंगा बहुत बड़ी. And and that was his vision towards what he wanted to do in office. 2004 में आए हैं ये. People who are physically not at the village try and get an understanding of what is going on in the village. But yes, that's what Rahul Gandhi has been doing. 2004 he won from Amethi, जो कि है prime seat. It's like मेरे घर में इलेक्शन करवा दो, 4 से 3 लोग तो मुझे वोट कर ही देंगे. So that was his seat. That has been the seat of Amethi for a very long time, and without even any nothing in politics. 2 साल में he joins, of course, Indian National Congress because nepotism है. Okay, that is what I feel. Because 2 साल में आप MP के टिकट से लड़ रहे हो, like really, मतलब seriously, आप कुछ काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो. This was the time, मैंने राहुल गांधी की वो images दी, dashing young leader, जैसा मस्त बोनेट पे बैठ के स्टूडेंट से बात करता है कि बताओ तुम लोग के प्रॉब्लम्स क्या है. 2004 में ही केम इनटू पावर. 2000 मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कोई कैबिनेट नहीं था. उसके बाद ही वाज री-इलेक्टेड इन 2009 एंड 2014. तो 3 बार वो अमेठी की सीट से जीते हैं, जहाँ पे I think so in 2019 he lost to Smriti Irani. First time he lost to Smriti Irani. So now let's talk about why is he, क्यों, मतलब why Congress is so be like राहुल गांधी नहीं तो हमारे पास कोई प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट ही नहीं है. तो अब मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में. इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि एक पार्टी थी which was responsible for securing our independence. भारत was like not like already a country और जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने अटैक किया. It was divided into small kingdoms practically. मुगल एम्परर्स थे, मराठा एम्पायर था जो सबसे बड़ा था तभी जब ब्रिटिशर्स आए थे. मतलब अगर आप एक बड़ा सा देश बोले तो it was मराठा एम्पायर because it stretched very long. बट उसके आजू बाजू में बहुत सारे छोटे किंगडम्स थे. That was there, and when they left practically, so they need someone to take care of it, right? So that's where Indian National Congress was created, जहाँ पे बहुत सारे बड़े लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू,
Vallabhbhai Patel, then there was of course Mohandas Karamchand Gandhi. All these people actually came in, and it was a very democratic situation जहाँ पे वो सारी बातें होती थी. And that's where our first prime minister came in, which was Jawaharlal Nehru. Only prime minister who were not from the Gandhi families were Lal Bahadur Shastri थे, Gulzari Lal Nanda जी थे. Gulzari Lal Nanda जी तो कुल मिला के सिर्फ 13 दिन 26 दिन के लिए थे. And Lal Bahadur Shastri was it was not even 2 years totally. Also, then there was Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, of course, from the Gandhi family. P.V. Narasimha Rao came after many years in 1991, and he served for 4 years and 330 days. So almost completing the entire term. And उसके बाद Manmohan Singh, I guess, that was the person who actually was our prime minister, who was not from the Gandhi family. But again, you know about Manmohan Singh and what his powers were during his prime ministerial point. So Congress party always needed, कांग्रेस पार्टी जो थी वो हमेशा ये गांधी सरनेम का क्रचेस उनको लगे हैं. So that's the reason I feel that they need Rahul Gandhi. I just feel that the entire attack जो हो रहा है कांग्रेस के ऊपर वो राहुल गांधी के ऊपर इतना ज्यादा है, तो they should actually remove him from the firing lane, and they should actually promote someone who actually has a merit to be the Prime Minister of India. Rahul Gandhi faces huge issues when he speaks in speeches and public rallies, because problem ये नहीं है कि आप बात कर सकते हो, प्रॉब्लम है कि कन्विंसिंगली भी अगर आप वो चीज कर सकते हो तो एक जुमला करने का भी एक तरीका होता है. आउट एंड आउट आप नहीं बन सकते, राइट? आउट एंड आउट आप इतना झूठ बोल दो कि यार जैसे उनका खटाखट पैसे आएगा, एंड दैट हाउ दैट टर्न्ड हॉरिबली फॉर देम, राइट? सो इट was a jumla at the end of the day. Everybody knew, but it just came back on them. That shouldn't happen. You talk about parliamentary banter, he raises good points, but बात जब जवाब देने की आती है तब उनके पास एक्चुअली वो फायर लेने की कैपेसिटी नहीं है. हमेशा इंडियन नेशनल कांग्रेस, आई फील दैट ही इज बीन ट्रीटेड एज बेट. Indian National Congress doesn't have a suitable person who can take up the charge and say that okay, I'll lead this party ahead. Can present himself as a leader, right? Mera biggest problem with Rahul Gandhi being a prime minister candidate is ultimately we have a prime minister who has done a lot for our country, but he has an administrative knowledge about it, right? Rahul Gandhi has not even been he's not even a mayor of a city or chief minister of a state or all these things. मतलब आपको एक पर्टिकुलर रीजन मैनेज करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो why should we feel that you are the right candidate? Because जो आप बीजेपी को बोल रहे हो, बीजेपी आपको भी बोल रही है. सो वो बैंटर अगर हम कंप्लीटली अलग रख दें तो क्या आप एज अ कैंडिडेट काफी ज्यादा अच्छे हो सकते हो? वो भी बात करने की बात है. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू देयर एंटायर कैंपेनिंग 2014 से 2024 तक, उनका कैंपेनिंग इज नॉट अबाउट विनिंग एंड वील डू दिस और दिस इज समथिंग व्हिच वी आर लुकिंग और दीज आर द हाइट्स वी आर गोइंग टू गो. वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट डेवलपमेंट इन दिस केस और हम इस चीज को इस तरीके से अचीव करेंगे, राइट? देयर इज नो प्रोबेबल अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ दे आर गोइंग देयर. उनका अल्टीमेट मोटिव और अल्टीमेट बैंकिंग सिर्फ इसी चीज पे होती है कि यार मोदी को हराना है. बहुत निगेटिव है, लाइक चौकीदार चोर है, हाथ बदलेगा हालात. आप बहुत रैंडम निगेटिविटी घुसा रहे हो एक वोटर के अंदर की जहां पे आप वोटर को ये बता रहे हो कि यार मैं आपको तकलीफ से बाहर निकालूंगा. पर आज हमें ये बताने वाला नेता चाहिए जो बोले कि आई नो तकलीफ है पर आई नो दैट यू कैन डू इट.
द डिफरेंस ऑफ द कैंपेन. ये कैंपेन का प्रॉब्लम ही है इनका कि यार ये बहुत नेगेटिव चले जाते हैं कैंपेनिंग में कि हम आपको सुधार देंगे, मैं वो एक जुमला किया था कि 1 सेकंड में आपकी गरीबी मिटा दूंगा. नहीं, मुझे ईंट बेचने वाला बंदा चाहिए जो बोलेगा यार तू गरीब नहीं है, तू कर सकता है. सोशलिज्म इज वेरी गुड एंड वो थोड़ा होना चाहिए बिकॉज बहुत बड़ा डिस्पैरिटी है. आई एम नॉट बीइंग इग्नोरेंट फक व्हेन इट कम्स टू दिस टॉपिक, बट द पॉइंट इज दैट कि when you are as Rahul Gandhi, I'm saying that कि अगर आप ये चीज कर रहे हो कि मैं ही आपको सब दूंगा तो आप फिर देश कैसे चलाओगे? इंडिया डजंट हैव सरप्लस फंड्स अबाउट एवरीथिंग, राइट? आपको खुद क्रिएट करके फिर बांटना है. ये बात नहीं समझ रही है बहुत टाइम पे. मुझे लगता है when it comes to Rahul Gandhi being the Prime Minister of India, the one thing he lacks is understanding about India, because ये बहुत शेल्टर्ड बैकग्राउंड से आए हैं. मतलब इनके सामने एक ऐसा बंदा है जिसने अपनी लाइफ निकाली आरएसएस में काम करके, और ये एज अ पर्सन काफी शेल्टर्ड तरीके से आराम से 30-35 साल में घुसे पॉलिटिक्स में. दैट इज समथिंग डिस्टर्बिंग प्रैक्टिकली टू अंडरस्टैंड इंडियन पॉलिटिक्स. दूसरी बात, मतलब एक स्ट्रॉन्ग विजन नहीं बना पा रहे. एक विजन ही नहीं है. मतलब व्हाट इज योर विजन अबाउट इंडिया? व्हाट डू यू वांट इंडिया टू बी लाइक? दूसरी बात, क्राइसिस मैनेजमेंट. एज अ लीडर उनको दिख रहा है पार्टी सफर हो रही है मेरे वजह से, ऑपोजिशन मुझे ही सिर्फ बता रही. तो रादर देन टेकिंग द एंटायर थिंग ऑन हिम, ही शुड हैव जस्ट गॉट आउट ऑफ द फायर थिंग एंड ही कुड हैव गॉट समवन एल्स. आई गेस बहुत सारे लोग थे कांग्रेस में जिनको एक्चुअली द पार्टी कुड हैव यूज्ड, जो बाद में बीजेपी में आए हैं. सो दैट्स समथिंग व्हिच एज अ पॉलिटिकल लीडर आई फील ही जस्ट वांट्स टू प्रेज हिमसेल्फ. That's the problem with him, that he is not able to understand that मैं अकेला नहीं डूब रहा हूँ, मैं पार्टी को लेके डूब रहा हूँ. As an alliance building, I would say that it was awesome. One thing I'll give to Rahul Gandhi and Indian National Congress is जिस तरीके से उन्होंने alliance बांधी है for this लोक सभा. मतलब इतने सारे लोग, इतने डिफरेंट विचारधारा है, पर सबको एक टॉपिक पे लेके आना कि हमें मोदी के खिलाफ लड़ना है. एंड सबको लेके बहुत अलग अलग है यार. लाइक आपकी आइडियोलॉजी अलग है, शरद पवार जी की आइडियोलॉजी अलग है, उद्धव ठाकरे जी की आइडियोलॉजी अलग है, लालू यादव की आइडियोलॉजी अलग है काफी ज्यादा. तो इन सबको आपको बांध के लेके आना है यहाँ पे, एंड देन यू हैव टू फाइट द इलेक्शन. तो इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क. You are talking about these leaders who have gone years after years, and these are all the people who have started blaming Congress and then formed their own parties. सारे leaders है ये कांग्रेस को गाली दे देकर लीडर बने हैं प्रैक्टिकली, राइट? एंड उन लोगों के साथ एक पॉजिटिव अलायंस बन के इलेक्शन लड़ना, तो आई वुड से ही हैज अ स्किल ऑफ बिल्डिंग दिस. सो एक बहुत अच्छी बात थी. बट अगेन ऐसी अलायंस बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी चाहिए. मोदी गवर्नमेंट की एक स्ट्रॉन्ग फाइट है उनको. दैट्स द रीजन इन लोगों को ऑफ कोर्स साथ में आना बनता था. बट स्टिल अगेन पुटिंग देम टुगेदर, गेटिंग देम ऑन वन थिंग, भारत जोड़ो यात्रा करना, द एंटायर थिंग, ऑफ कोर्स इट वाज नॉट एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली, बट एक बहुत ज्यादा अच्छा पीक दिखता है when it comes to public engagement या फिर alliance building. It's a good point. So I would always say that it is really good. Public perception थोड़ी थोड़ी बदल रही है अभी, थोड़ी थोड़ी. But again now क्या होता है, बदलते like you know it's changing. हाँ, राहुल गांधी he say something sense आदमी अच्छी बात है and then he himself. मतलब ऐसा लगता है कि यार ये नहीं करना चाहिए यार. Why is he saying these things? Why is तो एक परसेप्शन बनते बिगड़ जाता. पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट नो, आई हैव नेवर सीन हिम डिस्कस एनी पॉलिसीज प्रैक्टिकली. जो पॉलिसीज को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं उनका ही जोक बन जाता है, बिकॉज वो अंडरस्टैंड ही नहीं करते कौन से पॉलिसी का जोक बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं प्रैक्टिकली. एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो मैंने पहले बोला, आई डोंट फील ही हैज एक्सपीरियंस. मतलब अगर ये चीज होती कि वो वायनाड से इलेक्शन जीतते, वायनाड से
MP नहीं करके वो सडन ऐसा, अगर मैं देखूं यार मोदी 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 हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर राहुल गांधी की जगह पे होगा तो मैं कोई स्टेट चुनूंगा जो कि कंप्लीटली एलियन है मेरे को, एंड मैं उस स्टेट के लिए काम करता कम से कम 5 साल। मतलब मैं MP की कुर्सी छोड़ के MLA की कुर्सी पकड़ता, आई विल बी द चीफ मिनिस्टर, आई विल मेक सम mind-boggling changes in the production, in the what do you say, क्या बिजनेस स्केल प्रैक्टिकली, या फिर एक तरीके से एक पावरफुल इमेज बनाने की कोशिश करता खुद की, एंड तब जाके नरेंद्र मोदी को हेड ऑन हेड जाके फाइट करता, बिकॉज नरेंद्र मोदी इज जस्ट नॉट नरेंद्र मोदी बिकॉज ही इज बीन लाइक अरे यार मैं आ गया आज मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, नहीं यार, गुजरात के एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रहे वो, एंड उसके बाद ही इज बिकम द प्राइम मिनिस्टर, तो एक बहुत ट्रस्ट भी आता है उनके साथ। इट्स जस्ट नॉट कि हाँ हिंदुइज्म है एंड बीजेपी तो है तो इसके लिए, ऐसे नहीं होता, ऐसे कोई इतने साल नहीं जीत सकता, दैट्स द पॉइंट। अगर वो जीत रहे तो वो ट्रस्ट उन्होंने बनाया है। राहुल गांधी को अगर इतना लैकलस्टर मिला हुआ है तो उनको पहले ट्रस्ट बिल्डिंग शुरुआत करनी चाहिए, जो उन्होंने की इस बार जो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने जिस तरीके से घूमे, जिस तरीके से उन्होंने इंटरेक्ट किया, लोगों ने काफी सेंसिटिव साइड देखी कि हाँ यार ये चीज हो सकती है, ये चीज करनी चाहिए, एंड उसका रिजल्ट उनको मिला है। जो उनकी स्ट्रैटेजीज थी, अलायंसेस की, ये जो सारी चीज, पीपल हैव वोटेड फॉर हिम, सो इट्स अ गुड वे। बट द पॉइंट इज दैट कि इसके साथ साथ आपको पॉलिसीज के बारे में भी सोचना है, इसके साथ साथ आपको बिजनेस के बारे में सोचना है, इसके साथ साथ एक इमेज के बारे में सोचना। बाहर जाके बात करो इंडिया के बारे में और इंडिया के प्रॉब्लम्स मत गिनो, आप लोगों को पता हम सॉल्यूशंस कैसे दे सकते हैं आपको, आप इमेज बदलो लोग। आज इंडिया को बिजनेस की जरूरत है, आज इंडिया को GDP पैसों की जरूरत है, पैसों की जरूरत भीख मांग के नहीं चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए, हम बना सकते हैं वो काइंड ऑफ चीज। अगर आप बोलोगे इफ यू विल हैव द कैपिटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू एज BJP is having with the socialist attitude of yours, maybe that would be a right point for you. Innovative solutions, I don't feel. Ethical standards, come on, we are talking about politics. I don't feel ethics matter somewhere down the line when it comes to Indian politics. मेरा end like overall अगर मैं बोलूँ इस चीज को बहुत ही बेसिक मिला के, राहुल गांधी has a potential merit to become the Prime Minister of India, but right now at this position, how things are, I feel he's not deserving to be the candidate of Prime Minister. He's not at that position. Potentially, or 10 साल में, I would say that he would actually be a big leader when it comes to opposing and becoming Prime Minister of India. But right now I feel he still has to put in a lot of work rather than just becoming a MP and just being a leader of opposition, just criticizing. He has to build something. Again, वो एक बेसिक है, क्रिटिक कभी डायरेक्टर नहीं बन सकता और डायरेक्टर कभी क्रिटिक नहीं बन सकता। अगर आपको पिक्चर ही बनानी है, अगर आपको वो पोजीशन चाहिए तो आपको डायरेक्टर की चेयर पे आके बैठना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिटिक हमेशा क्रिटिक ही रहेगा, जितना भी बोला उसको बनाने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसको हमेशा ये बोलेगा ये खराब था ये सही था। पर आप जब खुद हाथ गंदे करोगे, जब आप खुद घुसोगे अंदर, जब आप खुद एक्चुअली इवैल्यूएट करोगे चीजों को कि मैं इस तरीके से इमेज बनाना चाहता हूँ, इस तरीके से चेंज करना चाहता हूँ चीज को, आप ट्रेंड समझोगे, आप लोगों के प्रॉब्लम समझोगे, आप एक तरीके से एक इंडियन पॉलिटिक्स का ग्राफ समझोगे, एंड देन यू विल मेक योर मूव्स। यू हैव everything in your hands. The problem is that you don't know how to use those things for yourself, and that's something which I feel ये बहुत ही मैंने इस चीज में मेरी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी साइड में रख के बात की, जितना हो सकता हूँ। मैं भी इंसान हूँ, अगर आपको लगता रहेगा एक वन साइडेड व्यू दे रहा हूँ तो यार आई एम सॉरी, बट जितना मेरे से हो सके मैंने इसको बहुत साइड में रख के बात रखने की कोशिश की है। मेरा एंड यही रहेगा कि यार हर लीडर और हर पर्सन को इलेक्शन लड़ने का हक है, हर पर्सन को अपने एक व्यू पॉइंट देने का हक है, हर पर्सन को जीतने का हक है, हारने का हक है। I just feel that Indian politics has always been this dynamic, and given the last 15 years, I would say it has changed like majorly. I feel ultimately everyone should be in that perspective where India should grow, India has to grow, India wants to grow, and India will grow. And as because I love Zakir Khan, who said this in one of his podcasts, this is India decade, and nothing can beat that. With that, I'm completing this my video where आपने ये वीडियो पूरा देखा. Thank you for that, and wait for, क्योंकि ओमकार बोलेगा और टाइम पे बोलेगा. Thank you.